I'm good, sir. How about you? Very good, very good. Boys and girls, please welcome Siddhant 99.85 I am Calcutta. So amazing, so amazing. सिद्धांत भाई फटाफट वेलकम करो. बात करते हैं सिद्धांत के साथ. सिद्धांत टॉपर है एंड ही वाज अ स्टूडेंट विद अस. ही इज वर्कड रियली हार्ड एंड ही क्रैक्ड और बहुत मेहनत करी थी. आज हम इनसे थोड़ी टिप्स ले लेते हैं एंड देन विल कम टू द क्लास. सिद्धांत, हाउ इज लाइफ एट आई एम कैलकाटा बाय द वे? हाउ इज लाइफ? Sir, first thing, I'm Calcutta के नीचे BTU नहीं है, DTU है. ओहो, सॉरी So फॉर दैट. या one सॉरी. thing is there. या सॉरी फॉर दैट. Next, yeah, life at IIM Calcutta is great. It's quite busy. It's quite tough, but yeah, it's something I actually worked for and I want. ओके सिद्धांत, जस्ट टू चेक. सिद्धांत तेरा ना वॉइस Been थोड़ा amazing वॉइस since last 3 months. Yeah. सिद्धांत तेरा वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा है तो Yes. यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो कैम. मे बी फोटो तेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, सो आई थिंक इल बी ऑल Okay. ओके. Yeah. So yeah, net issues are here. So I think That's fine, that's fine. Now it's now good. it's fine. Now it's perfectly fine. All right, boys and girls, let's begin. Yeah, let me ask you this question again. How's life at IIM Calcutta, Siddhant? Yes, sir. So life at IIM Calcutta has been really tough and has been actually very busy. It was last 3 months were Okay, so there are still now some the placement process is over. It's a bit chill now, but not so chill. But yeah, first year is also a bit difficult. ओके Yeah. थोड़ा सा वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है. सिद्धांत, कैन वी मूव अ नेटवर्क और कुछ कर सकते हैं हम लोग? Yeah, I can. Yeah. Yeah, 1 second. Okay. I'll try. ओके गाइस, लेट्स वेट फॉर सिद्धांत टू सेट हिज नेटवर्क. और बहुत ही अमेजिंग इंसान है, फ्रेशर है डीटीयू का. कोई आईआईटी नहीं, कोई एनआईटी नहीं, बट डीटीयू भी बहुत अमेजिंग कॉलेज है. और इस बंदे ने कैसे क्रैक किया था और लास्ट 20 दिन के अंदर इसके दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा था, वो सब बातें करेंगे. और ही वाज अ प्राउड, वी फील वेरी प्राउड. ही वाज अ कैट किंग स्टूडेंट और बहुत अमेजिंग. एंड दिस गर्ल आल्सो केम्स टू मी टुवर्ड द एंड एज वेल. बट मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रेटजी हमारी रहती है, जो चिंगारी हमने लगानी है, पर मेहनत तुम्हें करनी है. और तुम अगर अच्छे हो, मेहनत कर सकते हो, तो रिजल्ट आना ही आना यार. ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर सिद्धांत टू कम ऑन बोर्ड विद अस एंड लेट्स जस्ट चेक. I think, sir, this is the best I can do. So We can hear you now. like, Now is it better. still lagging? Yeah, it's better now. It's better now. Cool. Okay, great. सिद्धांत, सॉरी तेरे को तीसरी बार पूछ रहा हूँ. How is life at IIM Calcutta? Okay, so I'll repeat again. Life has been amazing because the things I've learned in the last 3 months has been great because the first 3 months of MBA are for any person. So I think yeah, that's the case. I can see still my voice is lagging and cracking, but this is the best I can do. I'll try with my mobile hotspot if it's possible. Yeah, now it's okay. Now it's okay. It's all right. We can hear max possible. नहीं तो I'll get on सिद्धांत on a call and then we can have another session. सिद्धांत, एक काम करते हैं, तो मेरे को मोबाइल पे कॉल करेगा and we can have a video call and I'll put you in the loudspeaker. अब आए ये तो बात कर ही लेते हैं. Cool, sir. I'll give you a हाँ, मेरे को नॉर्मल कॉल कर ले. normal call. हाँ, व्हाट्सएप कॉल, जो नॉर्मल कॉल कर ले, व्हाट्सएप नहीं. अपॉलॉजीज गाइस, बट बड़ा आदमी है, सुन लेते हैं, कुछ सीखेंगे हम सिद्धांत से. Hello. या सिद्धांत, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. I can hear. Superb. Quick check with the students. Boys and girls, can you hear us? Yes or no? All right, they're all saying yes. चलो भाई, बहुत अमेजिंग. चलो, ये हो गई ना बात. टेक्नोलॉजी को अपन ने आज किल कर दिया, मात दे दिया. Let's begin, boys and girls. Welcoming again Siddhant, 99.85 percentile CAT, fresher and cracked CAT. Life at IIM Calcutta staff. भाई प्लेसमेंट हो गई, सब कुछ हो गया है, इंटर्नशिप्स हो गई हैं. Yes, sir. The summer placement process got over in last week of October, and it was pretty hectic. So, but I will say that the last 3 months were the most amazing and the most like the best development stage at any point in MBA, I think, because they make you something totally a different person. Although the placement process is based on what you do in the last 4 years or the UG or in your school, but still the last 3 months were the best, I think.
सच्ची बताऊं, स्पिलिंग द ऑल बीन्स, भाई तेरा एमबीए खत्म हो चुका है। जो पहले 3 से 6 हाँ, महीने होते हैं ना वही सबसे रिग्रेस, एंड यू कम अक्रॉस दैट, विच इज रियली yeah, अमेजिंग। exactly. सुपर्ब सुपर्ब। बाकी यार, ये जो सुनते हैं अपन, 1 लाख लग रहा है, 2 लाख लग रहा है, पैकेज इंटर्नशिप में 2-2 लाख मिल रहा है, 3-3 लाख, इज इट ट्रू? Yes, sir. Actually, it's very, very true. So, I don't know if there has been any news of the highest stipend. I will not disclose it, but it was above 3.5 ओके, lakh per month. 3.5 लाख बोल रहा है ना? Yes, sir. 3.5 lakh per month. So, 3.5 लाख पर मंथ, बॉयज एंड गर्ल्स। तो हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हैं, पर आप एक्सपेक्ट मान के चले, हम 5 लाख, सिंस द वीडियो इज गोइंग पब्लिक, मिनिमम 5 लाख आपका पीपीओ अमाउंट भी लग सकता हाँ, है। तो ठीक है, अगर वो वाली चीज भी है, so it's an international package, like it's an international intern, so that is basically more than 6 lakhs. सुपर्ब So, सुपर्ब सुपर्ब। तो सुन रहे हो भाई, तो आज आई एम कैल का बंदा आगे तुम्हें बता रहा है हाउ कूल इज दैट। तो ये सब लाइफ जीनी है तो थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। सिद्धांत, लेट्स बिगिन यार। तूने कितने मॉक दिए थे लास्ट 20 दिन के अंदर? अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन का टाइम रह गया है। आज का दिन निकाल देंगे तो 18 दिन का टाइम रह गया है, 17 दिन रह गए हैं। क्या एडवाइस करना चाहेगा ऑन द मॉक्स टू दैम? okay, mocks. First of all, it depends कि जो last के आपने mocks दिए, have you revised those mocks enough? Like उन वो mocks, are you sure about कि अगर उनमें से कोई question आता है, you will be able to crack it. So पहला point is कि don't go for a lot of number of mocks, but the same thing is कि in the next 2 weeks, if you attempt, for example, 7 or 8 mocks, so you must be able to revise them within time. Otherwise, there is no point of giving mock if you cannot revise. So I believe, according to your capacity, you must have known अभी तक कि कितने mocks you can handle and what is your strategy going on. तो उसी के हिसाब से so you have to give that number of mocks. तो मेरा strategy था, तो I gave in last 20 days around 13-14 mocks, not more than that. और फिर point वो था कि last के 7 days में I have to make sure कि जो मैंने दिए हैं, I have to crack all the questions of those. So सुपर्ब that's the whole game. सुपर्ब। तो सारे बैठ के तूने एनालिसिस किए, बैठ के फिर एक एक मॉक को, टोटल नंबर ऑफ मॉक्स गिवन बाय यू वर हाउ मच? कितने मॉक्स दिए तूने? Total were around 60-70 marks. तो 60-70 मॉक्स। तो जो लोग डरते हैं ना, मैंने 5 दे दिए, मैंने 10 दे दिए सर, मैंने तो ज़िंदगी उखाड़ दी है। फ्रेशर बंदा 99.85 परसेंटाइल, 60 मॉक दिए इसने। अब तुम जितने दे सकते हो उतने दीजिए, 8, 10, 12 जितने दे सकते हो, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। ग्रेट, लेट्स बिगिन। यार थोड़ा थोड़ा टिप्स बता दे। सिद्धांत, तेरे को अपना इंडिविजुअल स्कोर याद है क्या? मेरे पास तेरा स्कोर कार्ड तो होगा, बट ढूंढना पड़ेगा तेरे को। yeah, I have the individual score. या So VRC was a bit light for me, bit not bit a lot actually, 91.88. ओके And quant was 99.79, and DLR was 99.88. सुपर। तो तूने 2 सेक्शन फोड़े यार। एक ना हैक है, हाँ, अगर तुम्हें IIM ABC की तैयारी करनी है तो IIM ABC जाना है तो 2 सेक्शन फोड़ते हैं अच्छे बच्चे, ठीक है? और अगर एक yeah. सेक्शन फोड़ते हो तो तुम इंदौर जाते हो, और ओवरऑल स्कोर भी उससे बूस्ट होता है। ग्रेट, लेट्स टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी। यार क्या बोलना चाहेगा उनको वर्बल एबिलिटी के लिए? कोई हैक है तेरा? Verbability में see, I've had experience कि मेरा low score रहा, so from that I can say कि at right now at this point, VRC में you should practice but with cautious. मतलब कि तुम्हें cautiously practice करना है. You don't have to go for new essays or everything new that you can do, because VRC में भी you need to revise what you have done before. अगर वो नहीं कर रहे तो you won't be able to get any more points. तो अभी is the thing is कि you have to constantly attempt it. Like the time is, I think VRC में timing का issue मेरे साथ था, because I was not able to read the whole passages, everything. So you need to adjust accordingly. कि मेरे को अगर ये decide किया है कि इतने passages मैं करता हूँ, so I'll try to expand more. I'll try to increase my speed a bit. उस हिसाब से, because speed is the key, I think VRC में, with preciseness. तो precise भी करना है तुम्हें और speed भी रखनी है। तो देखना है, like VRC में you have to rethink your strategies more and more. Like ये मैंने attempt किस तरह से किया, rather than कि उसमें ये था वो सब भी करना है, but you need to focus more on कि ये कैसे हुआ, मतलब like how did my score went from this to this or this to this. तो सुपर। मतलब you have to understand what strategy you are building, क्योंकि VRC में starting है, पेपर की start है, if your start is bad, तो your paper can get fucked again. तो वो चीज नहीं करनी है. You have to rethink कि मैंने strategy कैसे develop करनी है. I have to keep cool and calm.
बिकॉज VRC के सेक्शन से व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ VRC सेक्शन तो आई वाज प्रीटी कूल कि हाँ मैंने डिसेंट अटेम्प्ट दिया है अपना. Although score doesn't matter, but you must be ready with कि हाँ मेरे को आगे 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं. So nothing to मतलब वरी नहीं होना चाहिए VRC के बीच. एक्सेलेंट. देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप बॉयज एंड गर्ल्स. मैं आपके क्वेश्चंस इग्नोर कर रहा हूँ. ये सब क्वेश्चंस के आंसर मैं भी दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ. मैं सब बता दूंगा तुम्हें. इसलिए आज सिद्धांत की बात सुन लेते हैं. सिद्धांत ने बताया कि सिद्धांत एक आंसर बता यार, व्हाट वेंट रॉन्ग. अगर तेरा ये 91.8 के 88 की जगह नाक कटाई वैसे तूने मेरी थोड़ी, बट ये 95 परसेंटाइल होता तो आई थिंक यू वुड बी टचिंग 100 परसेंटाइल इन कैट एंड यू विल बी ऑल इंडिया टॉपर. बट व्हाट डू यू वांट टू रिकमेंड दैट. क्या गलती हो गई यार तेरे से, मतलब पेपर करते करते? मेरे से गलती हो गई थी कि आई वाज नॉट इन द जोन ऑफ द पेपर. जैसे शुरू हुआ मतलब एकदम से शुरू हो गया, लाइक इट वाज लाइक कि ओके इट हैज स्टार्टेड. सो फर्स्ट 10 मिनट्स तो मुझे उस जोन में आने में लगे जो एक्चुअली मॉक्स में आ जाता था मैं जनरली. तो इट वाज लैग फॉर मी देयर बिकॉज वहां पे वेटिंग टाइम इज फॉर 1 hour. मतलब मेरे टाइम पे तो तब था. सो दैट वेटिंग टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उस वेटिंग टाइम में देयर वाज अ प्रीटी चिल माहौल था एकदम रूम में. सो आई वाज आल्सो चिल कि ठीक है चल रहा है. तो एकदम से इट टुक मी 10 मिनट्स टू लाइक डाइजेस्ट दैट कि ओके पेपर हैज स्टार्टेड. तो 10 मिनट मेरे को वो जोन में आने में लगे. सो माय फर्स्ट RC वाज प्रीटी लॉन्ग. तो मैं वहां तक कर गया एंड फिर बट आई स्टिल मेंटेन माय कूल. वही मैंने कहा जैसे यू हैव टू मेंटेन योर कूल बिकॉज 2 सेक्शन और है. तो मैंने फिर आई फिनिश्ड गुड एक्चुअली. मतलब माय VA वाज वेरी गुड रादर देन RC. तो ऐसा था. So it was like a late pickup for me, but yeah, in the end I could manage like somehow. सुपर्ब यार, सुपर्ब. आई मीन दिस इज अ रियली हेल्पफुल टिप बॉयज एंड गर्ल्स. चेक कर लीजिएगा, उस जोन के अंदर जाना है. हाँ, उस जोन के अंदर जाना है, बहुत बहुत ज़रूरी है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब तुम मॉक देने लगे हो सिर्फ 2 घंटे मत दो, उसके पहले आधा घंटा भी थोड़ा मॉक की प्रिपरेशन में जाओ. वो करना जरूरी है. एंड आई आल्सो यूज्ड टू डू इट, बट ठीक है वो इट्स द डे दैट डिपेंड्स ऑन. इट्स द डे बट इट्स द फर्स्ट सेक्शन फॉर श्योर. तो वर्बल एबिलिटी का आपको टिप बता दी, याद रखिएगा. आगे चलते हैं यार. सिद्धांत जॉइनिंग इन फ्रॉम IIM कैलकाटा. नाउ वी गोइंग टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन. क्वांट का टॉपर है भाई ये, 99.79 है. सिद्धांत, एनी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देम. इनको भी टॉपर बनना है. कपल ऑफ पीपल विद अस फ्रॉम NIT IIT, तेरे जूनियर्स भी हैं DTU से कई यहाँ पे, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है. इनको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है. ये लास्ट के लिए क्या टिप बताएगा इनको, एंड में क्या करना चाहिए? ओके, सो क्वांट इज समथिंग जो आपकी काफी बेस स्ट्रॉन्ग होता है. जनरली एवरीवन इज प्रिपेयर्ड कि हाँ क्वांट में you have been scoring this much and you expect also to score that much only, क्योंकि DLR में काफी फ्लक्चुएशन होती है, क्वांट में नहीं होती है. बट द थिंग इज कि you have to get first questions, मतलब जो easy questions you have to get them right. egoistic नहीं होना है. no ego in quant. ego होगी तो you'll get negative. बहुत सिंपल सा सीन है. तो क्वांट में मेरे साथ भी यही था कि I could score more, like I was not happy with my quant. like when the paper ended I was like कि नहीं. There were 26 questions as far as I remember and I attempted 24 of them. और मेरे 2-3 क्वेश्चन में आई थिंक गलत हो गए थे. सो वो 3 क्वेश्चन मुझे काफी चुभे बिकॉज दैट वाज माय बेसिकली द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ क्वांट. बट स्कोर किया लेकिन उतना नहीं किया. सो क्वांट में अभी भी इफ यू हैव टाइम एंड यू एक्चुअली हैव टाइम, तो द बेस्ट सजेशन दैट आई गिव इन क्वांट एवरी टाइम coming here is that make a formula copy. That is really important, like really important. Like not just formula copy for the formulas but the strategies also. like ऐसे नहीं कि 2 पेज में सारे फॉर्मूला आ गए. It will surely take you 15-20 pages. और मैंने भी बनाई थी. It's not like something I can share. It's according to the person. Right. तू मुझे कॉपी दिखा रहा था अपनी, मुझे याद आ रहा है हमारा जब YouTube लाइव चल रहा था, you had a copy with you. I remember that. तो तेरे कुछ कॉपी था ना, नोटबुक था which you were prepared. Yeah, I showed the notebook that time, but अभी तो मैं नहीं दिखा सकता because like अभी नहीं that's fine. तूने बोल दिया, बहुत अमेजिंग बात. Boys and girls, check your formula copies, check your strategy copies. Right. Go to the dashboard. Everything is written up there. It's going to be really helpful. In the last few days आपका एक 15-20 पेज का अर्थमेटिक का नोट्स बन जाना चाहिए, अलजेब्रा का नोट बन जाना चाहिए. 4 पेज ऑफ अलजेब्रा, 4 पेज which is like you, मतलब which covers everything. जैसे आपके 100 must solve क्वेश्चन है अर्थमेटिक के, उनको देख के उसके अंदर से इजी क्वेश्चन उठा के सेट करिए. Anything else you want to add? Yeah. Quant में other thing that I would suggest is what I used to do in the month of November. मैंने सोचा कि I would not attempt any difficult questions. Like I will attempt what I have done. Like मेरे पास 50 mocks थे मेरे पास. तो in those 50 mocks मुझे ये पता था कि पेपर मेरा इन 50 से ही आना. It's very easy to understand this.
तो उनके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, लाइक एवरी मॉक यू हैव 5-6 क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट होते हैं, समथिंग दैट इज चैलेंजिंग फॉर यू टू कंप्लीट इन टाइम. तो यू मेक अ लिस्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस, नॉट अ लिस्ट बट ट्राई अटेम्प्टिंग देम अगेन अगेन. सुपर. क्वांट है समथिंग रिपीटेटिव ही है, लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन नया करके कुछ नहीं मिलेगा. समथिंग दैट यू हैव अटेम्प्टेड बिफोर उसको ही बार बार करो, और मॉडरेट टू सेमी डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहो. Try attempting easy questions also, because sometimes you think कि easy तो वहाँ पे हो ही जाएगा, and then you come back home and expect कि फिर easy questions वहाँ पे 2-3 गलत मिलेंगे, तो फिर it will be the biggest blunder of your life. तो वो नहीं करना है. Super. Easy questions भी करने हैं, moderate करने हैं, difficult light रखना है. Like उसको like you can do 10-15 questions in 1 week जो एकदम fresh difficult questions है, उतना नहीं कर, उससे ज़्यादा नहीं. ग्रेट. तो भाई जो भी डिफ़िकल्ट हो, जो भी हो, समराइजिंग द होल थॉट, एक नोटबुक बनाइए, उसके अंदर बैठ के तुम्हारा सेट होना चाहिए. गो टू द डैशबोर्ड, पिक इट अप, अपना खुद के 20 अरिथमेटिक के ऐसे सवाल ढूंढ लो जो तेरे दिमाग के अंदर फिक्स हो कि भाई मैंने इतने मॉक दिए, मैंने 30 मॉक दिए, मैंने 25 मॉक दिए, मैंने 20 मॉक दिए, हर सवाल का आंसर मुझे याद है और इसके बाहर से सवाल नहीं आने वाला. ये तुम्हारा लास्ट 10 दिन के अंदर स्ट्रेटजी होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं भाई. नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट इज योर data interpretation. We're moving to the third section. Siddhant joining in from IIM Calcutta 99.85. Siddhant, data interpretation you rocked and roll यार, फाड़ के आया तू data interpretation. क्या strategy बताना चाहेगा तू DI के लिए, इनके लिए? Okay, so DLR में I would first tell you my score and how I did it. It was 24 questions were there, and I attempted only 16 questions. 16. But the great part was कि मेरे 16 में से 15 questions right थे. Wow. So that's the killer point here. कि DLR में I was like depressed after giving the CAT exam. I was like ये तो बहुत बेकार हो गया. I have to search for job or something. But when I got the news कि DLR में सबका ही scene बेकार है, so I thought कि okay, there can be something. So DLR is something कि you don't have to expect anything from the paper. You just have to do it. मतलब इसमें if you make any choice कि 24 में से 20 तो करने हैं या 15 करने हैं या 10 करने हैं, don't do that. मतलब जितना आता है उतना करो, और and try to search for easy passages. ये तो बहुत basic है. और DLR का exit और DLR की entry, that is very important. VRC से आ रहे हो, किस mood से आ रहे हो, it depends. और आते ही मुश्किल सेट मिल गया तो you can take some 10-15 minutes to adjust to that basically the section. और DLR अच्छा नहीं हुआ. You for example 24 questions थे, 6 से 7 questions ही attempt कर पाए. तो उसमें quant में जाते वक्त you have to make up your mind again कि still one section is there, you can still ace it. तो मेरे साथ भी वही था. Since I attempted, like I used to get 24 में से 22 questions in the mocks correct. तो मेरा ये DLR का वो था, मतलब जनरल ट्रेंड. बट मैं अटेम्प्ट ही 16 करके आया था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट पॉइंट आल्सो कि क्वांट में वही माइंडसेट लेके जा. सो द थिंग इज कि एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है DLR का. प्लस यू हैव टू चूज कि अगर 6 क्वेश्चन वाला पैसेज, आई डोंट नो द पैटर्न जो अभी आएगा, बट किसी पे नहीं होता आई थिंक. तो अभी अगर मोर सेम रहने वाला 6 क्वेश्चन वाला, 4 क्वेश्चन वाला, 6 क्वेश्चन वाला जो आएगा, तो 6 क्वेश्चन वाला इट इज वेरी टेम्पटिंग कि एक बार में 6 क्वेश्चन सीधे सही होने वाले हैं. बट इट्स अगेन कि वो 6 अगर नहीं हुए तो यू विल बी एट अ लॉस ऑफ 6. सो लाइक आई वुड रियली सजेस्ट कि जो 4 वाले आने वाले हैं 3 पैसेजेस, तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दोस, उसके बाद 6 पे जाओ व्हेन यू आर इन द जोन कि हाँ भाई अभी थोड़ा सा पेन चला लिया है, बिकॉज VRC में यू डोंट यूज पेन दैट मच. तो पहले स्टार्ट विद small sets, try to find an easy set from 4 वाले सेट्स में से, फिर देन 6 पे जाओ, फिर देन अगेन 4 पे आओ. तो कीप रोटेटिंग. डोंट डू कि मेरे को पहले 6 वाले करने हैं फिर 4 वाले करने हैं या पहले 4 वाले करने हैं. सो डोंट डू दैट. सो मतलब मिक्स शफल करते रहो DLR में. एंड रिवाइजिंग स्ट्रेटजीज की मेरे पास DLR सेट्स की अराउंड, मेरे पास थे 35-40 सेट्स ऐसे थे कि मुझे पता था कि इन 35 से 40 में से आने. So again, जो मेरे 16 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे वो उन्हीं 35 सेट्स में से आए थे. आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट. क्योंकि DLR में भी यू आल्सो मेक अ जजमेंट आफ्टर गिविंग सो मेनी मॉक्स कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हाँ ये अलग कैटेगरी, ये अलग कैटेगरी. सो आई हैड अ लिस्ट इन माय नोटबुक एट द लास्ट पेज कि हाँ ये सेट्स हैं, एंड आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग. नवंबर में मैंने सिर्फ DLR के पुराने सेट्स रिवाइज करे, और डेली का लाइक एक सेक्शनल मॉक भी होते हैं, एक फुल मॉक होते हैं. तो DLR का रात को या फिर सुबह you'd give one fresh set एकदम कि हाँ उसको दिया, सेक्शनल मॉक दिया, and just check the scores of it. और फिर वही है, again you have to revise that set after 5 days.
इट्स नॉट लाइक कि अटेम्प्ट दिया छोड़ दिया. हाँ, मतलब ये तो करना ही है, ये तो हर सेक्शन में करना है. नवंबर में कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हो तो यू डोंट हैव टू लीव इट, उसको करना है दोबारा. बस मतलब टाइम बनाओ, किसी भी तरह बनाओ, आई डोंट नो, बट यू हैव टू मेक टाइम फॉर समथिंग. जो तुम कर रहे हो वो दोबारा दोबारा जरूर करना है, एटलीस्ट वंस. मतलब मैं 2-3 बार तो रिकमेंड करूंगा ही करना, उसको रिपीट. तो एटलीस्ट करना ही है एक बार तो. सुपर्ब यार, सुपर्ब. तो बॉयज एंड गर्ल्स, कंसोलिडेटिंग हिज थॉट्स, सिद्धांत किल डेटा इंटरप्रिटेशन. इसका अगर तुम मुद्दा देख पा रहे हो, इसका मुद्दा सिर्फ ये था कि बंदा कंसोलिडेट कर रहा था लास्ट में बैठ के, मैंने क्या किया. इसके बाद अपना नोटबुक था, पहली बार यू गेव कैट फर्स्ट टाइम इफ आई रिमेंबर, पहली बार में क्रैक किया ना तुमने. प्रेशर था. फ्रेशर भाई, पहली बार के अंदर क्रैक किया. जो लोग रोते हैं ना सर फ्रेशर है मेरा क्या होगा, ये बंदा आई एम कैल के अंदर बैठा और उसकी इंटर्नशिप भी लग चुकी है. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इंटर्नशिप की अभी बात नहीं करेंगे. ग्रेट यार सिद्धांत, दैट्स लवली. सिद्धांत एक बार जीडीपी कॉल आ गया तो कन्वर्ट करवा देंगे इनका. Yes, yes sir, sure, I'll be happy to help. ए वही ना बात. सो बॉयज एंड गर्ल्स, अगले साल तुम्हारा मोटिवेशन ये होना चाहिए, यू शुड बी सिद्धांत कमिंग ऑन बोर्ड एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स. और डैशबोर्ड वाज हेल्पफुल टू यू टुवर्ड्स द एंड व्हेन यू केम टू अस, इट वाज Yes, हेल्पफुल. sir. Actually, it was great because I was able to get all the data that I needed because एकदम से CAT देके you don't know how to start with your prep. So CAT King was there and I was able to understand everything. और within 2-3 weeks I was able to crack interviews. Like Great. mock interviews एकदम से I paced up because of CAT King. So नहीं नहीं, बंदा स्टड है. हाँ, ये बंदा लगता बड़ा मॉडेस्ट है, स्टड आदमी है. इसको लेके आएंगे हम दोबारा से. गाइस प्लीज से अ बिग थैंक यू टू सिद्धांत फॉर हिज टाइम, ही इज रियली अमेजिंग. थैंक यू सिद्धांत, तेरे को जीडीपी में वापस लेके आऊंगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर टाइम एट आई एम कैल. sure sir, thank you so much. ठीक है, हैव अ गुड डे. दे आर ऑल सेइंग थैंक यू टू इन द चैट एज वेल. थैंक्स मैन, थैंक यू सो मच. बाय बाय, हैव अ गुड नाइट. विल गेट ऑन द कॉल सून. बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय. Bye-bye. बाय. ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मज़ा आया कि नहीं भाई. ये जितने टॉपर्स आते हैं ना, इनकी थोड़ी बहुत बात सुन लिया करो. हाँ, इनकी बात सुन लिया करो. ये अच्छे इंसान है, इन लोगों ने किया हुआ है एंड दे कम फ्रॉम द कैट किंग फैमिली इटसेल्फ, यू नो. तो तीनों सेक्शन के बारे में हमने सब सुना. समराइजिंग थॉट में तीसरी बार बोल रहा हूँ, कंसोलिडेट कर ले बैठ के साइड में खोपचे में. कल 11 तरीके, जब भी ये वीडियो सुनेंगे तुम लोग, मैं इसको डैशबोर्ड पे भी डाल दूंगा. 11 तरीके बैठ के अपने क्वांट के सेट बना, अपने बैठ के अपने डीआर के सेट बना. और नई चीज़, इसने इतनी सही बात बोली, इसने 50-60 मॉक दिए, पर इसने तुम्हें बोला कि तुझे और मॉक नहीं देने तो मत दे. हाँ, तुझे 30 मॉक देने, 30 मॉक. सच्ची बताऊं, एक टॉपर इंसान समवेयर अराउंड 20 से लेके 40, 50, 60 मॉक्स तक देता है, राइट. 20 से लेके 40-50 मॉक्स तक देता है. तो अगर 20 मॉक के ऊपर, मैंने कभी नहीं देखे ऐसे लोग कि भाई मैंने 2 मॉक दिए थे. होते हैं कई, 1-2 स्टड होते हैं आईआईटी वाईटी के, 2 मॉक दिए, मेरा हो गया भाई 99%. आई नो देम एज वेल, राइट. तो भाई इसलिए मेहनत करते जाइए और थिंग विल फॉल इन प्लेस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. लेट्स बिगिन द सेशन टुडे एंड होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल.